Welcome back once again in the video lecture series of Visual Basic. Here I am going to accumulate the basic concept of Visual Basic by teaching you integrated development environment. Basically, integrated development environment is used to create a new project for the development of a software. So, whenever we are going to develop a software, so how should it get initiates? That software is going to design on which platform, how many controls or how many components are being used. That is also very important. Right? We have to have the accountability of how many components as a whole we have taken to develop that software. The platform is also very essential, and during the development of the software, whatever we have taken the components as controls, so what are the different properties that we have taken into accomplishment of the software development, that is also very important. And finally, when the project will come in front of us as a user, then how it look like. So all these things comes under integrated development environment. So to accomplish integrated development environment in the better way, actually IDE is having some major components, right? These components starts from menu bar. In menu bar, I have already told you that there are several menu bars are there, such as file, edit, view, format. Next you can take, that is debug. You can take run, right? You can also take query. So, like this, you can take various menu bar to start your project. Okay, to start your project. Like from file menu, we can take new project to start developing the project. Okay. Next one is your toolbar. Toolbar is nothing but some graphics has been given to you as a tools. Right? Some tools are given to you as a graphics, as a diagram, which is underlying just below to this menu bar. These are known as your what? Toolbars, such as save, cut, or suppose you have to run the software. So there are some of the tools which are given in your toolbars. You can easily use all of them one by one. Next one is toolbox. Toolbox is nothing but it is a set of controls, right? It is a set of controls, or we can say it is a control set. What is a control set? Control set is having the set of controls such as text box, we can use it, right? Labels, we can use it. We can use it commands, we can use it picture, we can use it use image box, we can use checkbox, option box, list box, combo box. There are so many commands in standard exe and in ActiveX control that we can use very easily, right? So these controls can be also known as components here in the terms of integrated development environment. Okay, fine. Thereafter, the very important thing that I have already taught you in earlier session when I was teaching you about Project Explorer Windows, the main focus of or the main fragrance of Project Explorer Windows is nothing but it is responsible to having an accountability of all the components which we are using it in our development of software. Suppose एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज मेरी सॉफ्टवेयर के बनाने में मुझे करीबन
फॉर्म्स की जरूरत पड़ी, 7 फॉर्म्स की जरूरत पड़ी, सेम एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ, 7 फॉर्म्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। एंड ऑन एन एवरेज इन 7 फॉर्म्स आई एम यूजिंग, से फॉर एग्जांपल एक फॉर्म में कम से कम मैं 4 टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहा हूँ, टीबी यूज फॉर टेक्स्ट बॉक्स, राइट, टेक्स्ट बॉक्स कर लेता हूं यहां पे, एंड इतना ही मैं ले लेता हूं लेबल बॉक्स, राइट। कमांड बटन्स ले लेते हैं, तो सपोज मैं मान लेता हूं 4 कमांड बटन्स, CMD बटन्स मैं लिख देता हूं यहां पे, इन शॉर्ट कमांड बटन्स, ओके। सपोज पिक्चर बॉक्स 1, इमेज बॉक्स 1, राइट, सपोज 1 पिक्चर बॉक्स, 1 image box, 1 image box, and let's take some more examples like 2 list box, and 1 combo box. So just imagine that in the development of my software we are using 7 forms, and on an average 1 form is including 4 text box, 4 label box, 4 command buttons, and these are the series of the components that we are using for developing a software. So now, how many total text box will be needed? Say for example, for text box, how many text box will be there? 7 into 4, that is your 28. For label box also 7 into 4, that is 28. For command button also 7 into 4, that is 28, right? For this, suppose 7, okay, this will be your 14 for list box, and say for 7 for your combo box. So total, if you get the total, so you will get that a lot of components you have used in this development of software. So how can I know that which text box is related to which form, which command button is related to which form, which picture box is related to which form? So for that, naming is important, naming is very important, as I have already told you. But the thing is that Project Explorer Windows take the responsibility of all these maintaining the accountability, right? That is why Project Explorer window is very important, right? Next one is your form. What is form? Form is ready. So in form give a platform on which you will take all these components in the design mode, right? In the next picture, in the next diagram, I will just show you. I will show you all these things. Property windows, very important. As I have already told you, properties windows is what? Suppose you are taking one component, right? You are taking some controls, and to that control, there are several properties that you can use. Because I have already told you, Visual Basic is totally customized based package, right? You can customize each and every component or controls. So properties, by setting the properties windows, you can get a very good options for coding, right? That is why properties windows is given to you, right? And last but not least, the thing is your form layout. In form layout, basically it shows that what will be the actual picture when it will come in front of the user, right? So layout means क्या कि जब सॉफ्टवेयर जब बनने के बाद हमारे पास ये जो फॉर्म जब आएगा तो वो विंडोज में वो कहाँ पे किस तरीके से दिखेगा, दैट इज नोन एज आवर फॉर्म लेआउट. सो ये डायग्राम शायद मैंने लास्ट टाइम भी पार्ट 2 में एक बार मैंने आपको बताने की कोशिश किया हुआ जब मैं आपको स्टैंडर्ड EXE और बाकी चीजें जब मैं बता रहा था कि न्यू प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं एक बार फिर से मैं उसी डायग्राम को एक बार फिर से मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ आपको. और हियर आई वांट टू लेट यू नो कि हाउ एक्चुअल integrated development environment works, how actually it works, right?
जब भी हम स्टैंडर्ड EXE के थ्रू कोई भी चीज किसी नए प्रोजेक्ट को हम लोग खोलते हैं तो कुछ वो इस तरीके से हमारे पास में आता है, और हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो मिलता है वो मिलता है हमारे पास फॉर्म 1। तो देखिए फॉर्म 1 को मिलते ही हम लोगों के पास जो भी कंपोनेंट जो मैंने बताया था, चाहे वो मेनू बार था, चाहे वो टूल बार था, चाहे वो टूल बॉक्स था, चाहे वो फॉर्म था, चाहे वो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था, चाहे प्रॉपर्टीज था, चाहे फॉर्म लेआउट था, तो ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे कंपोनेंट्स किस तरीके से एक्ट करते हैं उस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक बार डेमो देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपने फॉर्म 1 को अगर लिया तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि यहाँ पे फॉर्म 1 आ चुका है, फॉर्म 1 आ चुका है। क्लियर? मेरे ख्याल से बात आप समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसके साथ साथ और हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, इसके साथ साथ हमें पता चलता है चूंकि अभी फॉर्म 1 मेरा एक्टिव है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज में मेरा जो प्रॉपर्टी जो आएगा वो किस चीज की प्रॉपर्टी शो करेगा, वो आपकी फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। राइट? यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं ऊपर प्रॉपर्टीज। राइट? और ये प्रॉपर्टीज किसकी शो करेगा, फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज शो करेगा। फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। राइट? तो आपके पास एक नंबर ऑफ सीरीज आपके पास आ जाएगी, वहां पे आप जिस चीज को भी आप जो भी प्रॉपर्टी को आप चूज करना चाहते हैं, इट इज totally depending upon you because you can customize each and every control according to you. Right? इसके साथ साथ और चीजें क्या एक्शन में आएंगी, फॉर्म 1 के आते ही सबसे पहली चीजें आपको ये दिखाएगा कि फाइनल जब आप इस फॉर्म को देखिएगा इन द एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, जो एग्जीक्यूट करके जब आएगा तो फाइनली आपको फॉर्म इस पूरे स्क्रीन में, ये देखिए जो बाहर का जो पोर्शन दैट इज नोन एज योर स्क्रीन, और ये है आपका फॉर्म। राइट? मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज योर स्क्रीन। राइट? दिस इज योर स्क्रीन एंड दिस इज योर फॉर्म। राइट? तो फॉर्म आपका कहां दिखाई देगा, ये आपको पहले ही आपको डिसाइड करना है। करेक्ट? सो ये आईडी का ये तो फर्स्ट बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब इसके साथ साथ आपको यहां पे कुछ चीजें दिख रही होंगी, दिस इज नथिंग बट सम जनरल थिंग इज रिटन हियर। जनरल क्या है ये, दिस इज द टूल बॉक्स। जैसे आपके पास क्या क्या है, कमांड बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल्स हैं, इमेजेस हैं, इमेज बॉक्स है, पिक्चर बॉक्स है, ऑप्शन बॉक्स है, चेक बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, और बहुत सारी चीजें हैं। राइट? अब मान लीजिए कि इनमें से अगर आपको अगर एक हमें क्या लेना है, सपोज हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है। राइट? तो टेक्स्ट बॉक्स हमने इसको क्लिक किया और माउस से हमने टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ पर ले लिया। जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स को लिया, यहाँ पर फॉर्म 1 के साथ क्या आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और चीज क्या एक्टिवेट होगा आप बताइए, क्योंकि अभी हमने फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी यहाँ पे आपका क्या फॉर्म 1 हट जाएगा और यहाँ पे क्या लेगा, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स 1 की प्रॉपर्टी आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। राइट? ओके फाइन। नेक्स्ट, अगर आपको अगर लेबल अगर लेना है, एक इसके साथ अगर लेबल लेना है एंटर द ट्रेन नंबर के लिए, सपोज अगर लेबल लेना है तो ये लेबल एक और यहाँ पे आ जाएगा, किसमें, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आ जाएगा, दैट इज लेबल 1। राइट? लेवल 1 की तरह आ जाएगा। अब आपको क्या दिखाई देगा, प्रॉपर्टी, चूंकि अभी आपका फॉर्म एक्टिव नहीं है, आपका टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव नहीं है। एक्टिव की मैं बात करूं, अभी लास्ट आपने किसको सेलेक्ट किया था, लेबल बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया था। सो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली इरेज होकर के किसका आएगा, लेबल 1 आ जाएगा। राइट? लेबल 1 की प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं जो मैंने आपको बताई है, वो यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने माउस को इसके बजाय यहाँ पे अगर क्लिक किया तो वो अगेन यहाँ से लेवल 1 हट करके टेक्स्ट बॉक्स 1 की प्रॉपर्टी शो होने लगेगी। राइट? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मुझे आपको ये चीज थोड़ा सा शो करना था कि हम लोग किस तरीके से, सपोज हमने लिया, ये ले लिया लेवल 1 कर लिया, इसको ये ले लिया टेक्स्ट बॉक्स टीबी 1 कर लिया, और सपोज 3 कमांड बटन ले लिए, है ना, 3 कमांड्स बटन ले लिया और उसके कैप्शन को हमने चेंज कर दिया, यहाँ डाल दिया ओके। और सपोज मान लिया हमने यहाँ पर एक और ले लिया, सेव ले लिया, 2 ही लेकर के
कर रहे हैं, ठीक है। 2 लेने के बाद अब क्या करना है, सो आईडी में एक चीज यहाँ पे आता है टूल बॉक्स में, ये जो पट्टी दी हुई है यहाँ पे जो मैंने जो ड्रॉ किया है जो मेनू बार के नीचे, दिस इज नोन एज टूल बार। और टूल बार के अंदर एक आपको एक डायग्राम दिया होगा कुछ इस तरीके से टिल्टेड ट्रायंगल होगा। ये जो डायग्राम होता है वो आपका होता है किस चीज का होता है, रन का होता है। किस चीज का होता है, रन का होता है। रन हम लोग करके क्या करेंगे कि इसका हम लोग फाइनल आउटकम देखेंगे कि फाइनली ये आउटकम किस तरीके से दिखाई देगा। तो वहां पे ऊपर लिखा आएगा फॉर्म 1, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 चीजें होंगी। लेवल 1 हालांकि नहीं लिखा रहता है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। लेवल 1 यहाँ पे रहेगा, उसके बगल में ये आपका होगा टेक्स्ट बॉक्स 1 होगा और यहाँ पर 2 बटन्स आपके होंगे, ओके और सेव की। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मुझे ये आपको बताना था कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, और इसके लिए ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना एक के भी हम लोग बेहतर ढंग से किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं बना पाएंगे। एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो मैं बता रहा था तो मैं सभी के मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था, मैंने इवेंट्स नहीं बताया था। सारे कंट्रोल्स की मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, इवेंट्स नहीं बताया था। वो इसलिए नहीं बताया था कि इवेंट्स वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट वो कोडिंग का सेक्शन है। इसके पहले जहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो डिजाइनिंग का सेक्शन था। इसलिए मैं चाहता था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन मोड से अच्छी तरीके से मैं आपको रूबरू करा सकूं, और इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, जब हम लोग विजुअल बेसिक को और डीप स्टडी करेंगे तो हम लोग इसके कमांड मोड में ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त बिताएंगे, और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके अलग अलग कंट्रोल्स क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट के कंट्रोल्स के और उसके इवेंट्स किस तरीके से होते हैं, और हम क्यों कहते हैं कि विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।